three topics to be covered. Those are of the reaction turbine, centrifugal pump and the reciprocating pump. तो ऑन शेड्यूल वैसे रिएक्शन टरबाइन के बाद मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट करवाती हूँ एंड देन द रेसिप्रोकेटिंग पंप. बट टुडे होपफुली व्हेन वी विल कवर द रिएक्शन टरबाइन, उसके बाद मैं आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप कवर करवाऊंगी बिकॉज दैट इज अ स्मॉल टॉपिक. सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है दैट इज अ कंप्लीट टॉपिक एंड इट विल टेक टाइम. आई डोंट वांट टू ब्रेक दैट इन मिडल. सो उसको हम लोग नेक्स्ट वीक कवर करेंगे कंप्लीट टॉपिक को. एंड टुडे आई विल कवर रिएक्शन टरबाइन एंड द रेसिप्रोकेटिंग पंप. ठीक है. Or regarding the submissions, I think I have shared the submission dates with you also. Open-ended lab और जो आपकी है complex engineering problem, उसकी submissions हैं when you will come to the department in the psychomotor week. CEP की submission है psychomotor week के first day में, that is I think 12th. और जो open-ended lab है उसको perform करने के लिए हमने आपको 2 weeks दिए हैं, तो वो आपने second week के end पे open-ended lab की reports जो हैं वो submit करवानी है. और रिगार्डिंग द असाइनमेंट्स, जो आपकी क्लास असाइनमेंट्स है वो आप लोगों ने हार्ड फॉर्म में सारी सबमिट करवानी है व्हेन यू विल कम टू द डिपार्टमेंट फॉर द साइकोमोटर. ठीक है. उसकी भी सबमिशन 12th को ही है, तो वो आप प्लीज़ देखें. आप लोगों ने असाइनमेंट्स सबमिट करवानी है इन द फॉर्म कि आप सारी जो असाइनमेंट्स हैं मेरे पार्ट वाली वो एक फोल्डर में बाइंड करवाएंगे ऑर्डर वाइज, और इसी तरह उस्मान की भी जो सारी असाइनमेंट्स हैं वो आप ऑर्डर में बाइंड करवाएंगे. ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग ऑल द असाइनमेंट सेपरेटली, आप मेरे पार्ट की सारे असाइनमेंट्स एक ही फोल्डर में ऑर्डर वाइज बाइंड करवा के सबमिट करवाएंगे एंड दैट विल आल्सो बी सबमिटेड ऑन द 12th ऑफ नेक्स्ट मंथ. ठीक है. तो आपने CEP के साथ सबमिट करवानी है. तो आपकी थ्योरी की सारी सबमिशन जो है वो 12th को है, CEP की भी और आपकी क्लास असाइनमेंट्स की भी. ठीक है. सर उस्मान अपने पार्ट के असाइनमेंट्स के बारे में आपको क्लियर कर देंगे दैट हाउ यू विल सबमिट दैट एंड व्हाट इज द सबमिशन डेट. बट होपफुली दैट विल बी 12th. जिस दिन आप CEP सबमिट करवा रहे हैं उस दिन आप थ्योरी की बाकी सारे असाइनमेंट भी सबमिट करवाएंगे. ओके. सो विल स्टार्ट विद द रिएक्शन टरबाइन. आज हम लोग रिएक्शन टरबाइन कवर करेंगे एंड द रेसिप्रोकेटिंग पंप. मैम एक टॉपिक कम कर Starting दें. with the basic definition, I have already told the difference between the impulse turbine and the reaction turbine. The basic difference between the two machines is that impulse turbine is using only the water velocity and the reaction turbine is using the velocity and the pressure both. Okay, so we have already covered the impulse turbine and today we will cover the reaction turbine. Okay. So we will further discuss the main components of the reaction turbine, and for this you can see this field layout. This field layout is having this obstruction, which is the dam in this case, and due to the construction of the dam, you will have the reservoir on its upstream side. The reservoir will induce the hydraulic energy in the water, and that is in the form of the elevation head. When the water is allowed to move in the penstock, that elevation energy will change into the velocity and the pressure energy. And in the powerhouse, you will have the turbine. In this case, we are using a reaction turbine. So reaction turbine will convert the incoming hydraulic energy into the mechanical energy. Further, that mechanical energy will be transferred from the turbine to the generator with the help of the shaft. And to dispose of the water, you are having this draft tube which is connected with the outlet of the reaction turbine. Okay, so this is the basic working figure for the reaction turbine. And the components includes are the spiral casing, guide mechanism which is having the fixed and the movable guide blades, runner, shaft, draft tube and governor. So now the working will be more clear to you when we will discuss all these components one by one. So starting with the spiral casing, it is an airtight chamber which will accommodate the runner and the guide mechanism. So this figure shows the section of the casing.
Now, please make sure, although we have already discussed the definitions that impulse turbine is using only the water velocity, while the reaction turbine is using both the velocity and the pressure. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप का जो रनर है वो इन दोनों एनर्जीज को रिस्पॉन्ड कर रहा है इन द रिएक्शन टरबाइन. प्लीज रिमेंबर दैट रनर इज ओनली रिस्पॉन्डिंग टू द वाटर वेलोसिटी. ये जितनी ज़्यादा वाटर की वेलोसिटी है विद इट इज ट्राइंग टू द रनर, द मोर विल बी द रोटेशन इन द रनर. So pressure is not contributing in the rotation of the runner. That is only done by the water velocity. It means that in this machine as well, you have to convert the pressure into the velocity. क्या the difference क्या है कि impulse turbine में ये conversion water के machine में enter होने से पहले की थी with the help of the nozzle. While in the reaction turbine, this conversion will be done in the machine casing. Okay, so you have to convert the pressure into the velocity. So in this case, this conversion is done by the casing of the machine. So if you see this figure, the flow area of the casing is reducing along the flow direction. That reduction in the flow area will increase the velocity and reduce the pressure. And as the flow area is not uniform along the flow direction, that is why this is termed as the spiral casing. Also, it can have the increasing area as well, because spiral casing की जो basic definition है, that is the flow area is not uniform along the flow direction. It will either increase or decrease, that depends upon the conversion requirement. इस केस में आपने प्रेशर को वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है, दैट इज व्हाई वी विल रिड्यूस द फ्लो एरिया along the flow direction. Okay, further it is having the runner and the guide mechanism. If you see the arrangement of the blades of the guide mechanism and the runner, you can see that their flow area is also reducing along the flow direction, and it is serving the same purpose, that reduction in the flow area will increase the velocity and reduce the pressure. तो इस पूरी कन्वर्जन से प्रेशर जो है दैट विल डिक्रीज सो मच दैट इट विल बिकम नेगेटिव एट द सेंटर ऑफ द रनर and you will attain the maximum velocity. Okay, so this is the basic function of the spiral casing. Okay, next component is the guide mechanism. So guide mechanism is basically provided to guide the water to make it enter from the spiral casing towards the runner smoothly. The guide mechanism is having two types of the blades: fixed guide blades and the movable guide blades. The fixed guide blades, as the name indicates, they are fixed in their position, and in this figure they are shown with these stay vanes. So they will guide the water which is coming from the spiral casing towards the movable guide blades. Movable guide blades can move about their pivot point. अब इसका advantage क्या है? Through these movable guide blades, you can control the flow. You can regulate the flow which is coming towards the runner. Okay. Now these blades are not lying in the air. They are attached to some metal rings. Fixed और movable guide blades जो हैं ये metal के rings के ऊपर attached हैं. So by controlling the rotation of that ring, you can control the opening of these movable guide blades. अब इस particular figure में you can see that the consecutive blades are lying almost horizontally. Okay, and due to that, the spacing between the two consecutive blades is very less. It means that in this case, the water which is coming from the fixed guide blade that will enter in a very less quantity or even zero to the runner. लेकिन अगर आप यही spacing increase कर दें, say you have increased the angle and these blades are nearly vertical, तो उस केस में जो दो consecutive blades हैं, इनके between the spacing है that will be maximum, and in that case, the maximum flow will enter from the casing towards the runner. So this is how you can control the flow rate of the reaction turbine. Now also if I ask you that with which component you will attach the governor in this machine, so its answer should be simply that it will be attached with the movable guide blades. हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है गवर्नर का फंक्शन. The governor is always attached with a component which is controlling the discharge, because that is a way to control the speed of the runner. So in this machine, the movable guide blades are regulating the flow. So that is why the governor is also attached with these movable guide blades. Okay.
Okay, so this is a runner. It is a wheel on the periphery of which number of the radial curved vanes are mounted, and its basic function is to convert the hydraulic energy into the mechanical energy. And to be more particular, this hydraulic energy is in the form of the water velocity. Okay, so ये basically water की velocity को convert कर रहा है mechanical energy में. Okay, next component is the shaft. It is a rotating rod which is supported by the bearings, and its function is to transfer the energy from one medium to other medium. And in this machine, it is transferring the mechanical energy from the turbine runner to the generator in the field. Okay, next is the draft tube. Draft tube is required to safely dispose of the water into the tail race channel. हम लोगों ने discuss किया है that the pressure variation takes place in the spiral casing, and it is reduced so much that pressure will become negative at the center of the casing. Okay, so if you see this figure, this is the spiral casing, and this is the center of the casing. This is the shaft. Pressure is negative at the center of the casing, and velocity is very high. So you cannot dispose of the water directly with those conditions to the tail race channel. ठीक है, वो अगर डाउनस्ट्रीम साइड पे आप वाटर को डायरेक्टली डिस्पोज करते हैं, दैट विल कॉज अनस्टेबिलिटी ऑफ दैट चैनल. एरोडिंग होगी, बहुत ज़्यादा स्पीड से वाटर आ रहा है, that will cause eroding, that will cause a splashing. It is not to save the disposed water with those extreme conditions. So for that, you are using this conduit. This conduit is termed as draft tube. It is having the area increasing along the flow direction. अब इसका advantage क्या है? That if you are increasing the flow area, the pressure will increase from negative to positive, and also the velocity will decrease. So when you will finally dispose the water into the tail race, the pressure and the velocity values will be much more in the normal range as compared to the extreme conditions which were at the center of the casing. Okay, this is the function of the draft tube mainly. Now it is providing one more extra advantage, और वो क्या है, that it will allow you to install the machine at a certain high elevation without losing the head. अब इसकी explanation कैसे है? The net head which is available to you, that is the difference of the headrest level, this level, and the center of the casing. जो आपका नेट हेड अवेलेबल है वो आपका ये डिफरेंस है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का लेवल का डिफरेंस, H1. Okay, this is the net मैम head आपकी available आवाज to you. बहुत You can increase this H1 if you move this machine downward. ठीक है, अब जिस इस मशीन को जितना डाउनवर्ड मूव करेंगे उतना ही आप इस H1 को इंक्रीज कर सकते हैं. Now, if you are mainly focusing on increasing this H1, then in that case, you have to install this machine very lower and possibly near to the tail race level. अगर आप उसको tail race level के बिल्कुल पास लगा रहे हैं, then it means that it is not easy to operate with the machine physically. If you have any problem with the machine, if you have to do its maintenance, if you have to replace any power, if you have any other issue related with the machine in which you have to physically examine the machine, then it will not be easy in this case. इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो बिल्कुल वाटर लेवल के पास लगी हुई है, so you cannot easily do its maintenance. So to overcome that issue, you have to move it to certain high elevation so that it can be easily maintained. अब अगर आप मशीन को ऊपर मूव कर रहे हैं एलिवेशन में, then it will reduce this H1 value. अब इस केस में ड्राफ्ट ट्यूब एडवांटेज क्या दे रहा है? That if you are attaching a draft tube that is providing a certain head from section 2 to this tail race channel. क्या ये कंडुएट है, इसमें वाटर किसी प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, so it is not dropping to zero. So it is giving you a certain pressure head that is termed as HT over here, which is the head height of the draft. The total head which is available to you in this case, that is H1 plus HT. Okay, so this is the gross head. ये gross head को increase कर रहा है. Okay, so this is the other. Okay, just a minute. ये कुछ बच्चे जो है ना, you can never be mature enough. Just let me change the settings.
Yes, okay, I have changed the settings. Please at least be mature enough not to do these kind of acts. ठीक है, आज सिर्फ मैंने सेटिंग्स चेंज नहीं किया, आप लोगों को मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया एंड यू आर डूइंग दिस. तो अगर आप लोग नहीं काम करना चाह रहे हैं देन काइंडली लीव द मीटिंग. डोंट डिस्टर्ब द अदर पीपल एंड मी एट लीस्ट. Okay, so that was regarding the draft tube. And next we will discuss different types of the reaction turbine. Now this classification is basically based upon the flow direction. Okay, based upon the flow direction, we can have mainly three types of the reaction turbine, and those are radial flow reaction turbine, axial flow reaction turbine, and mixed flow reaction turbine. In the radial flow reaction turbine, the flow is more or less along the radius of the runner. It is radial. It can be further divided into two types. It can be inward radial flow reaction turbine, or it can be outward radial flow reaction turbine. In the inward radial flow reaction turbine, the water is moving inward. तो इसकी जो एंट्रेंस की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है. So in this case, water is entering from the outer periphery and it will move radially along the runner and then it will leave at the inner periphery. In this case, as the water is entering from the outer periphery, so guide blades, the guide mechanism is provided along the outer periphery of the runner. ठीक है, इसके example जो that is the Francis reaction turbine. Okay, next is the outward radial flow reaction turbine. In this case, the water entrance direction is outward. It will enter from the inner periphery and it will finally leave at the outer periphery. So in this case, as the water is entering from the inner periphery, the guide mechanism is provided along the inner radius of the runner. Okay, this is a shaft. These are the guide blades and this is the rudder. So direction of the water is outward. Okay. Next is axial flow reaction turbine. In this case, the flow of the water is more or less axial along the shaft axis. An example of this is the Kaplan turbine. हम लोग Kaplan को in detail discuss करेंगे अभी, so it will be clear to you that how it works. Also, you have the mixed flow reaction turbine. In this case, the flow is partially axial and partially radial. Most of the modern machines are coming under this category, and even जो आपकी modern Francis reaction turbine है, that is under this category of the mixed flow reaction turbine. ठीक है, जो एक typical या जो basic Francis है, that is truly inward radial flow reaction turbine. लेकिन आजकल जो Francis manufacture हो रही है, that is falling under this category of the mixed flow reaction turbine. Okay. Then all the work done by the inward radial flow reaction turbine. For this, you are considering this runner of an inward radial flow reaction turbine and you will draw the velocity triangle at the inlet and outlet tips. These triangles are exactly same what you have already drawn, and further R1 and R2 are the inner and outer radius of the runner in this case. You have to apply the impulse momentum equation and you have to write down the equation for Fn, that is rho q Vw1 minus Vw2 over here. Okay, further you will convert this force into work done per second and finally you will find out the maximum theoretical hydraulic efficiency that is given in this equation. Okay. So this is the hydraulic efficiency of the inward radial flow reaction turbine. Now we will modify this equation or this relation for the Francis reaction turbine particularly. So Francis is a type of inward radial flow reaction turbine, but what is the definition of this? It is a turbine in which the vanes are radial at the inlet tip. It means that theta1 is 90 degree and discharge is radial at the outlet tip, which means that beta2 is 90 degree. It means कि अगर आपके पास जो अभी ट्राइंगल्स आप लोगों ने पढ़ी हैं, आप लोगों की बेसिक ट्राइंगल्स हैं, if you put theta1 and beta2 as 90 in these triangles, your triangles will reduce to these. So these triangles are particularly for the Francis reaction turbine. Okay. This type of the turbine is provided on the hydropower plants of the medium head, and Mangla and Tarbela are having the Francis reaction turbines installed in their powerhouses. Number of the blades ranges from 16 to 24. Okay. Now next we will find out the equation for the discharge of the radial flow reaction turbine, and in this case we are considering this runner. D1 is the diameter of the wheel at the inlet. ये inward radial flow हमने consider की है, so outer periphery is the inlet
surface, and this inner diameter is basically the outlet of the flowing water. So D1 is the diameter of the wheel at the inlet, D2 is the inner diameter, Vf1 is the velocity of the flow at the inlet tip, V1 is the width of the wheel at the inlet. Similarly, Vf2 and V2 are the corresponding values at the outer tip. Now you have to find out the discharge. Q1 is the discharge at the inlet of the wheel. Discharge के लिए आपकी simple जो basic equation है, that is area into velocity. The velocity is Vf1 and Vf2. Now what will be the area? Area is basically the circumference of this runner wheel. ठीक है, ये जो पूरा circumference है उस पूरे direction से water जो है अब enter हो रहा है. So area of the circumference is pi d, and we will multiply it with this width. तो ये total area है जिसमें से वो water flow कर रहा है. It is pi dv. So for Q1 it is pi d1 v1 into Vf1, and for Q2 it is pi d2. जी हसन. मैम वो जी बेटा. ट्रायंगल पिछली स्लाइड पे ट्रायंगल्स एक्सप्लेन कर दें. बच्चे मुझे आवाज आपकी काफी आहिस्ता आ रही है. चैट में बताओ क्वेश्चन क्या है, चैट में बता दो, टेक्स्ट कर दो, टेक्स्ट कर दो. So Q2 is pi d2 v2 Vf2. Now you will basically apply the equation of continuity, that is area 1 and area 2 will both remain same. So these two discharges will be equal for that. So Q1 and Q2 both are equal. So it is pi d1 v1 Vf1, that is equals to pi d2 v2 Vf2. Just simplify this equation. This is the equation for the equation of continuity at this. जी ऐसा ना आप मुझे अपना क्वेश्चन बेटा टेक्स्ट कर दें. ट्राइंगल्स ऑफ द फ्रांसिस, ये बिल्कुल वही ट्राइंगल्स हैं जो आप लोगों ने पहले इम्पल्स के लिए या जो बाकी केसेस में बनाई हैं. आपको याद है कि मैंने आपको वो केस करवाया था जहाँ पे आपके पास ब्रेड है जो कि मूव कर रही है. ठीक है, तो ये बिल्कुल वही ट्राइंगल्स हैं. ठीक है, देखिए your jet is finally entering with VR1. ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है V1. ठीक है, और जेट एंटर हो रहा है विद वेलोसिटी VR1. तो आपने ऑन स्केल पहले V1 प्लॉट किया है, आपको U1 नोन है, ये वेक्टर U1 है. ठीक है, ये आपको नोन है. इनके रिजल्टेंट आपके पास VR1 है. Vf1 जो है वर्टिकल कंपोनेंट है V1 का. VW1 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है V1 का. β1 एंगल है V1 का विद हॉरिजॉन्टल, और θ1 एंगल है VR1 का विद हॉरिजॉन्टल. ठीक है, ये बिल्कुल वही है. ठीक है, अलाइनमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर आप उसी अलाइनमेंट पे भी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इट इज एग्जैक्टली सेम. ठीक है, तो ये मोर और लेस ट्रायंगल बिल्कुल वही है जो आप लोगों ने पहले ड्रॉ की है. जनरल ट्रायंगल्स वही हैं. आपने फर्दर उनको अपनी मशीन्स के रिस्पेक्टिवली मॉडिफाई किया हुआ है. आप ये देखिए, फाइनली अगर VR1 से आपका जेट एंटर हो रहा है इन द वाटर एंटर हो रहा है इन द बकेट, इट विल लीव विद VR2. U2 आपको नोन है, U2 आपने ड्रॉ की, इन दोनों का रिजल्टेंट आपको दे रहा है V2. ये बिल्कुल वही है जो आप लोगों ने पहले काम किया हुआ है. V2 का वर्टिकल कंपोनेंट है Vf2, V2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है VW2, V2 का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ β2, और VR2 का एंगल है विद हॉरिजॉन्टल θ2. ये बिल्कुल वही स्टेप्स हैं. इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा है कि थोड़ा सा इस पे काम शुरू करें. अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे फिर आपको शायद मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप पिछला चैप्टर जो है उसको फ्रॉम द केस 1 स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, फिर आपको ये चीज़ें बहुत ईजी लगेगी. ठीक है, सो ये बिल्कुल वही ट्राइंगल है जो आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है इम्पैक्ट ऑफ जेट के चैप्टर में. ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, अगर फिजिकली आप देख रहे हैं विजुअली डिफरेंस क्या नजर आ रहा होगा कि वहाँ पे ट्राइंगल की बेस ऊपर शो की हुई थी और वेक्टर्स इंक्लाइंड नीचे थे. अब यहाँ पे बेस नीचे शो की हुई है, तो दैट विल नॉट मेक द डिफरेंस. आप बिल्कुल उसी शेप पे ड्रॉ कर लें तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा. ठीक है, triangles are exactly same to what you have already done. Okay. Okay, so this is basically the application of equation of continuity. हाँ बेटा, इसको आप देखिए, अगर कोई और चीजें क्लियर नहीं है फिर आप एक दफा देखिए, देन आई एम मोर एबल टू गिव यू द करेक्ट आंसर्स. ठीक है, जो भी क्वेश्चन है पर्टिकुलर फिर आप उसको जरूर डिस्कस करें मेरे साथ. ओके, नेक्स्ट इज कैप्लन टरबाइन.
Kaplan turbine is also termed as propeller turbine. It is a type of the turbine in which the direction of the flow of the water is parallel to the axis of the shaft. Okay, so this is the shape of the runner of the Kaplan turbine, and it is similar to the shape of the propeller of the ship. That is why this turbine is also termed as propeller turbine. It is having number of backward curved wings, और ये जो नंबर है it can vary from 3 to 8. इस केस में ये जो पार्ट है सॉलिड पार्ट है रनर का, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज हब और बॉस. कुछ बुक्स में आपको हब लिखा हुआ मिलेगा, कुछ में बॉस लिखा हुआ है. So this solid component is termed as hub or boss. This is the runner. Now see this figure. So this is the runner. ये blades नजर आ रही हैं, and this is the shaft. Now please make sure these are all the types of the reaction turbines. So basic components will remain same. You will have the spiral casing, you will have the draft tube. ठीक है, सो ये केसिंग है. अब ये देखें, ये यहाँ से आपको कैसे पता चल रहा है कि स्पाइरल केसिंग है. ये सेक्शन है, तो ये है फ्लो एरिया स्पाइरल केसिंग का इस पॉइंट पे, और ये है फ्लो एरिया स्पाइरल केसिंग का इस एंड पे. तो ये देखें, ये दोनों एरिया सेम नहीं है. इट मीन्स दैट दिस इज अ स्पाइरल केसिंग, द फ्लो एरिया इज वेरिंग अलोंग द फ्लो डायरेक्शन. Here further, these are the guide rails through which the water will be passing, and finally you will guide them to move along the desired direction. ये ड्राफ्ट ट्यूब है जहाँ से वाटर जो है वो दोबारा से टेल रेस चैनल में मूव करेगा. दिस इज दी टॉप व्यू, या ये टॉप सेक्शन आपने यहाँ से कट किया हुआ है. तो दिस इज द शाफ्ट, दिस इज द रनर, दिस इज दी, ये ब्लू ये देखें, ये बेसिकली आपको हब नजर आ रहा है. ठीक है, उसकी बाउंड्री नजर आ रही है. दिस इज द केसिंग, दीज आर द गाइड रेल्स. So this is the typical layout of a Kaplan turbine. It is provided on the hydropower plants having the low heads. Nandipur hydropower station is having this turbine installed in their powerhouses. Okay, next equation is for the discharge to the Kaplan turbine, and same discharge is area into the flow velocity. Flow velocity is VF. अब इस केस में आपने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ फ्लो. तो इफ यू सी वाटर इज मूविंग एक्सियली अलोंग द रनर अलोंग द शाफ्ट एक्सिस. ठीक है, ये डायरेक्शन है, वर्टिकल फ्लो डायरेक्शन है. अब इस केस में ये पूरा फ्लो एरिया आपको अवेलेबल नहीं है कि यहाँ पे जो ये आप ये देखिए, यहाँ पे बॉस मेंशन किया हुआ है इसको. सो इट इज अ हब और अ बॉस. ये सॉलिड पार्ट है, इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू एनी फ्लो एरिया. तो जो अवेलेबल फ्लो एरिया है दैट इज दिस वन व्हिच इज अवेलेबल ऑन द साइड्स ऑफ दिस. Okay, so in this case the respective area will be respective to the difference of the diameters, d minus dv. So discharge is pi by 4 into d square minus dv square into vf. Okay, so this is the equation of the discharge. Okay, next equation is next discussion is on the efficiencies, and we have already discussed that what are the available efficiencies. We have the hydraulic efficiency, mechanical efficiency. मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो equations आप लोगों ने efficiencies की develop की हैं पिछले discussions में, these are basically the equations for the hydraulic efficiencies. That how much percentage of the hydraulic energy is converted into the mechanical energy. ठीक है, फर्दर आपके पास एक और एफिशिएंसी है, वो है मैकेनिकल एफिशिएंसी. दैट विल टेल यू दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ दैट मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफर टू द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट. दैट इज द मैकेनिकल एफिशिएंसी. So when you are discussing the machine design particularly, you have to use the overall efficiency, that is eta naught. So that is the product of the mechanical and the hydraulic efficiency. So usually data में आपको eta naught given होता है. अगर given नहीं है, you can assume its value. अगर आपको मैकेनिकल और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी सेपरेटली गिवन है तो फिर इनकी प्रोडक्ट से ईटा नॉट आएगा. ये आपको याद होना चाहिए कि अगर ईटा एम और ईटा एच गिवन है तो आप इससे ईटा नॉट कैसे निकालेंगे, वो इसकी प्रोडक्ट से आता है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिगार्डिंग द कैविटेशन. कैविटेशन का जो फिनोमेना है दैट इज वेरी कॉमन इन द मशीन्स वेयर एवर द प्रेशर वेरिएशन इज टेकिंग प्लेस. अब इसकी रीजन क्या है व्हाई द कैविटेशन टेक्स प्लेस. कैविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज लिंक्ड विद द फिनोमेना ऑफ लिक्विड बॉइलिंग.
अगर आपके पास कोई भी लिक्विड है, आपने उसको बॉईल करना है, उसकी बेसिक अप्रोच क्या है, that you have to increase the vapor pressure of the liquid so much by heating that it will become equal to the absolute pressure of the atmosphere or surrounding, right? तो जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर सराउंडिंग के एब्सोल्यूट प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, देन द लिक्विड विल स्टार्ट टू बॉईल। ये एक नॉर्मल अप्रोच है जो कि हम लिक्विड को बॉईल करने के लिए यूज करते हैं। अब अगर हम इसका ऑल्टरनेट करते हैं, दैट वी आर नॉट वेरिंग द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, हम लिक्विड को हीट नहीं कर रहे हैं, हम उसके वेपर प्रेशर को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे, लेकिन हम जो सराउंडिंग का एब्सोल्यूट प्रेशर है हम उसको डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, की पॉइंट क्या है बॉइलिंग के लिए, दैट बोथ ऑफ द प्रेशर शुड बिकम सेम। यूजुअल अप्रोच में हम लोग लिक्विड के वेपर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं सो दैट इट विल बिकम इक्वल्स टू द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग एंड देन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। अगर आप ऑल्टरनेट अप्रोच यूज कर रहे हैं जिसमें आप लिक्विड के वेपर प्रेशर को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे, लेकिन आप जो सराउंडिंग का एब्सोल्यूट प्रेशर है उसको आप डिक्रीज कर रहे हैं, अगर वो आपने इतना डिक्रीज कर दिया है कि वो लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया है, देन अगेन द लिक्विड विल स्टार्ट टू बॉईल। तो यूजुअली आपके पास जो मशीन्स हैं, हाइड्रोलिक मशीन्स, जहाँ पे प्रेशर वेरी कर रहा है विद इन द मशीन्स, विद इन द मशीन पार्ट्स, वहाँ पे ये सेकेंड फिनोमेना नेचुरली अकर होता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि रिएक्शन टरबाइन में आपने प्रेशर को इतना डिक्रीज कर दिया दैट इट विल बिकम नेगेटिव, सो ऑब्वियसली इट मींस दैट विद इन दैट वेरिएशन ऑफ द प्रेशर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे वो प्रेशर उस वाटर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया होगा, राइट? सो व्हेनेवर दिस कंडीशन विल अकर, दैट विल कॉज द लिक्विड टू बॉईल विदाउट एनी एक्सटर्नल हीटिंग। आप लिक्विड को बिल्कुल हीट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली वाटर का प्रेशर इस तरह से वेरी कर रहा है कि उस पूरे एटमोसफेयर का प्रेशर इस तरह से वेरी कर रहा है कि वहाँ पे लिक्विड की बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। नाउ व्हेन द लिक्विड विल बॉइल, उस केस में क्या होगा, द वेपर बबल्स और द वाटर बबल्स विल फॉर्म। ठीक है, और जैसे जैसे वाटर बॉईल करता जा रहा है वो वाटर के बबल्स भी फॉर्म होते जा रहे हैं। Also the liquid is not fixed at one position, it is moving in the machine parts. So when the machine is moving, the water bubbles will also move with the water. पॉसिबल है कि वाटर जो है वो कुछ ड्यूरेशन के बाद मशीन में उस पार्ट में चला जाए जहाँ पे प्रेशर हाई है, हाई प्रेशर जोन में चला जाए। Now in that high pressure zone, the external high pressure will act on these water bubbles, on these vapor bubbles. Due to that external high pressure, the vapor bubbles will burst. And when they burst, they will impact a sudden force on the surface of the machine. So although the impact force of this one bubble will be very less, okay, but consider this force to be multiplied by million bubbles, by million times. क्योंकि नंबर ऑफ बबल्स आपके पास बहुत ज़्यादा हैं और जितनी देर आपका वाटर उस मशीन में मूव कर रहा है, एक्सपेक्ट द बॉइलिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर बबल्स। तो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, जब तक आपकी मशीन चलती रहेगी यू कैन एक्सपेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स बाय द लिक्विड बॉइलिंग। ठीक है, तो अगर यही फोर्स कॉन्टिन्यूसली उसी एक पोजीशन पे बार बार एक्सर्ट हो रही है, दैट विल इम्पैक्ट अ सडन long term effect on that surface, and finally you can see that the erosion will take place on the surface of the machine parts. This erosion is basically the result of this cavitation. Cavitation क्या है? Formation of the bubbles and then they are bursting in the high pressure zone. और उस cavitation की वजह से जो erosion हो रही है मशीन की surface की, that is termed as pitting. Okay? So cavitation की वजह से जो मशीन की सरफेस एरोड हो रही है, this is termed as pitting. So whenever we will have the cavitation in the machines, more or less always it will be accompanied by the pitting as well. Now the possible locations of the cavitation and pitting in the turbine are runner, guide blades and draft tube, and in the pump these are impeller, suction pipe and spiral casing. Wherever the pressure variation is possible, those areas are prone to the process of cavitation and pitting. Okay, तो ये probable locations है जहाँ पे cavitation अगर हो जाती है machines के अंदर. Now the major disadvantage of the cavitation is pitting, and pitting will increase the surface roughness and hence it will increase the head losses. It will reduce the discharging capacity of the hydraulic machines
It will reduce the efficiency of the hydraulic machines. It will produce a hissing sound in the machine, and it may produce very slight vibrations in the machine as well. Okay. Now, what are the remedial measures to control the cavitation? आप इसको बिल्कुल zero नहीं कर सकते हैं, because whenever the pressure variation is taking place, you always will have the chances of cavitation. लेकिन आप इसके occurrence के chances को कम कर सकते हैं, by taking the measures जिनकी वजह से cavitation हो रही है. So first one is that keep the absolute pressure of the liquid greater than the vapor pressure of that liquid at a given temperature in all the components of the machine. ठीक है, तो जो बेसिक रीजन है जिससे बॉइलिंग स्टार्ट होगी, आप उस रीजन को ही कंट्रोल करने की कोशिश करें. दैट बोथ द प्रेशर शुड नॉट बी become same. Keep the machine temperature as low as possible. Keep the lowest velocities in the machine parts, and the sharp bends should be avoided. Okay. Okay, next is the discussion regarding the selection of the turbine. Now, it is very important regarding the CEP. आपकी जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है उसके अंदर आप लोगों ने टरबाइन को डिज़ाइन करना है. ठीक है, उसमें आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ टरबाइन गिवन नहीं है. यू आर गिवन विद द डाटा ऑफ द हेड जो कि आपके रोल नंबर वाइज वेरी कर रहा है. ऑल्सो यू आर गिवन विद द वैल्यू ऑफ एन एंड पावर. आपने टरबाइन डिज़ाइन करनी है, उसके लिए आपको यही 3 बेसिक पैरामीटर्स चाहिए. अब जो भी आपकी हेड की वैल्यू है वो आप फाइंड कर लें अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर्स. ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड द फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक स्पीड. NS का फार्मूला हम लोगों ने इम्पल्स टरबाइन के चैप्टर में पढ़ा था. क्या आप उस फार्मूला से NS की वैल्यू फाइंड करें. अब अगर आप इस स्लाइड को देखें, you can select the type of the turbine based upon that head value and based upon the specific speed value. आप इन दोनों पैरामीटर्स के रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ टरबाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड इट शुड बी सेम. ठीक है, जो भी आपकी हेड की वैल्यू है, अगर उससे फ्रांसिस टरबाइन आ रही है तो उसी हेड के रिस्पेक्टिव आपने जो NS की वैल्यू फाइंड की होगी वो यहाँ पे भी आपको इस रेंज में लाएगी जो कि आपको फ्रांसिस की टाइप बता रहा होगा. ठीक है, अब इसको यूज करने का एक बेस्ट वे क्या है. इफ यू सर्च ऑन द इंटरनेट, यू कैन इजीली फाइंड आउट अ ग्राफ which is relating the head and specific speed. ठीक है, उसमें पॉसिबली अलोंग वाई हेड है. तो मैंने आपकी इस ड्राइव के लिंक के थ्रू आप जो PDF डाउनलोड करेंगे ना इन इस लेक्चर का, उसके अंदर मैंने वो ग्राफ अटैच किया हुआ है. ठीक है, तो उस में आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कौन सा ग्राफ रेफर कर रही हूँ. Along Y you have head and along X you have the specific speed, and in between you have different curves. तो अपनी हेड और NS की वैल्यू को आप इंटरसेक्ट करें और वो जिस भी ग्राफ पे कट कर रही हैं, दैट इज द टाइप ऑफ द टरबाइन विच यू हैव टू डिजाइन फॉर योर डाटा. ठीक है, तो वो बेसिकली इसी ग्राफ को इसी टेबल के डाटा को आपने उस ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ. तो इट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट अप्रोच. आप लोगों का पहला स्टेप यही है CP का कि आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपकी टरबाइन की टाइप कौन सी होगी. तो वंस यू हैव डन दैट, फिर आप के पास अगर रिएक्शन टरबाइन आ रही है तो उसका डिज़ाइन कर दें. अगर आपके पास कैप्लन है तो उसका डिज़ाइन कर दें. And please make sure in the design you possibly are required to assume the data depending upon the type. ठीक है, आपको बहुत जनरल डाटा गिवन है आपकी स्टेटमेंट में, क्योंकि जो डाटा रिक्वायर्ड है स्पेसिफिकली फॉर एवरी टरबाइन दैट इज वेरिंग. ठीक है, तो आप जो भी टरबाइन आपके केस में आ रही है, आप उस टरबाइन के रिस्पेक्टिवली कुछ वैल्यूज अकॉर्डिंगली अज्यूम करेंगे, बट दैट अजम्पशन विल बी वेरी मच लॉजिकल. अगर आप किसी और रेफरेंस के थ्रू डिसाइड कर रहे हैं, किसी और बुक के थ्रू आपने पढ़ा है या कोई और रेफरेंस आपने रेफर किया है जहाँ से आपने वो वैल्यूज सेलेक्ट की हैं, तो आप उस रेफरेंस को ज़रूर मेंशन करें कि आपने ये वैल्यूज इस रेफरेंस के हेल्प से अज्यूम की हैं. ठीक है, so when that is what I'm saying, start working on the assignments and CEP as soon as possible, क्योंकि उसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं, क्योंकि वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं सारी. ठीक है, तो उसमें काफ़ी डाटा गिवन नहीं है क्योंकि वो टाइप ऑफ टरबाइन पे वेरी कर रहा है. तो जो भी आपकी टरबाइन की टाइप है आपने उसके लिए कुछ वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेंगी आपको. ठीक है, तो वो अजम्पशन आपने लॉजिकल करनी है अजम्पशन. और अगर आप
लिटरेचर रेफर कर रहे हैं उसके लिए, तो उस लिटरेचर को, उस रेफरेंस को ज़रूर मेंशन करें अपने उस रिपोर्ट में जहाँ पे आपने उस डाटा को मेंशन किया हो। ओके, सो दिस इज द बेसिक वे टू डिसाइड द टाइप ऑफ द टरबाइन। आपकी जो पीडीएफ है इस चैप्टर की, उसके अंदर मैंने वो ग्राफ अटैच किया हुआ है, सो यू कैन सी दैट ग्राफ फॉर रेफरेंस एज वेल। ओके, नेक्स्ट is a comparison between the impulse turbine and the reaction turbine. So you can see the basic difference I have listed in the tabular form, so it is quite easy. Okay, next is the similarity law and the affinity law. These laws are very important regarding the solutions of the designs and analysis. Okay, सबसे पहली चीज that these laws are applicable to the homologous machines, the machines which are geometrically similar. So this is a basic condition to use these laws. अब इसका एडवांटेज क्या है? आप अज्यूम करें दैट यू हैव अ मशीन विच इज़ वर्किंग इन योर सेट इन्वायरमेंट। अगर आपके पास एक और मशीन है विच इज़ अ न्यू वन बट इट इज़ स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू योर ओरिजिनल मशीन, उस ओरिजिनल मशीन से साइज में छोटी है लेकिन ज्योमेट्रिकली सिमिलर है। कंडीशन क्या है इस लॉ के लिए? दैट बोथ द मशीन शुड बी ज्योमेट्रिकली सिमिलर। ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, अब उसका एडवांटेज क्या है? दैट यू डोंट नीड टू इंस्टॉल दैट मशीन प्रैक्टिकली, या यू डोंट नीड टू डू ऑल द कैलकुलेशन फॉर दैट मशीन फिजिकली। आप इन लॉस को यूज़ करके उसी फर्स्ट मशीन के आउटपुट्स को उसी सेकंड मशीन के आउटपुट्स और डिफरेंट पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने कैसे करना है वो भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ फर्दर। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आपने एक मशीन इंस्टॉल की हुई है एक पर्टिकुलर फील्ड कंडीशन में। अब अगर आप उस फील्ड कंडीशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, से आप हेड इंक्रीज कर रहे हैं, आप डिस्चार्ज डिक्रीज कर रहे हैं, आप एन की वैल्यू वेरी कर रहे हैं, कोई और वेरिएबल आपने रखा है, अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये पैरामीटर वेरी करते हैं अगर, तो उससे मशीन के पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, वो अगर आपने फाइंड करना है तो उसके लिए आपको नई मशीन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको वो पैरामीटर एक्चुअली में फिजिकली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो करने से पहले आप उसका इफेक्ट बाय दीज लॉज चेक कर सकते हैं ऑन द पेपर। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इफेक्ट आएगा आपके पैरामीटर्स पे। देन इफ इट इज विजिबल यू कैन डू दैट चेंजेस प्रैक्टिकल इन द फील्ड, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट। These are very useful laws regarding this. So these are the laws which are given for discharge N, T and P power. क्या अब इनको आपने further modify कैसे किया है? In this form, in the form of subscript 1 and 2. तो 1 and 2 shows the turbine 1 and 2 अगर आप मशीन चेंज कर रहे हैं, या it shows the operating condition 1 and 2। ठीक है, तो वो डिपेंड कर रहा है कि आपने मशीन चेंज की है या आपने कंडीशन चेंज की है। 1 and 2 रहता था, 1 ओरिजिनल कंडीशन या ओरिजिनल मशीन है, और 2 न्यू मशीन या न्यू कंडीशन है। Now for understanding of this we can see this problem. This is problem number 14.3 from Doctor. Okay, so given data is mentioning that N1, Q1, P01 and A01. अब इस केस में आपने मशीन चेंज की है, लेकिन ये मेंशन है कि जो H1 है, जो हेड है, इनिशियली उस मशीन से जो सिमिलर है दैट मशीन डिजाइन है। अब आप फाइंड चेक करते हैं कि अगर आप इसकी हेड को डबल करते हैं तो देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन दिस एन पी एंड पी नॉट वन, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, उससे पहले आपने इस पहली कंडीशन के की एफिशिएंसी भी चेक करनी है ई डॉट वन। तो पी नॉट वन इज पी नॉट ओवर gamma to H in percent। बच्चे थोड़ा सा चेक करते चाहिए करें। आप लोगों के माइक्स जो हैं दे बिकम अनम्यूट। आई डोंट नो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोशिश करें कि आपके माइक्स जो हैं वो अनम्यूट मत हो, क्या वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं क्लास में। सो दैट इज ईटा नॉट वन। नाउ फॉर द सेकंड ऑपरेशनल कंडीशन, जहाँ पे हेड डबल किया है आपने N2, Q2 और P02 फाइंड करना है। Okay, now what is important regarding this, that is you are not changing the machine। आप मशीन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो मशीन के जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं they will remain same। D1 and D2 both parameters are same। ठीक है,
तो ये दोनों सेम है, इसलिए इस सोल्यूशन में D1 और D2 की रेशो 1 आएगी। जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि D1 और D2 गिवन नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मशीन आपने चेंज नहीं की, आपने सिर्फ ऑपरेटिंग कंडीशन चेंज की है। तो यहाँ पे सिर्फ H1 और H2 की वैल्यूज डिफरेंट हैं, बाकी सारे पैरामीटर्स D1 और D2 के सेम है। ठीक है, फर्दर इट विल गिव यू N2, Q2 एंड P02. So you can study the effect of the increase in the head on these values. ठीक है, तो देखें हेड इंक्रीज किया है तो एन की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है, क्यू डिक्रीज हो गया है, और सॉरी क्यू भी इंक्रीज हो गया है और पावर भी इंक्रीज हो गई है। हेड इंक्रीज कर दिया ना आपने, आपने बेसिकली इनपुट एनर्जी इंक्रीज कर दी है, तो आपके जो सारे पैरामीटर्स हैं दे विल आल्सो इंक्रीज। Okay, next problem. In this case, you are given with the invert radial flow reaction turbine. N की वैल्यू गिवन है, VF1 गिवन है, बीटा1 गिवन है, D1 गिवन है. You have to find out VR1, theta1, VW1 and U1. Now all of these parameters are basically the parameters of the velocity triangle. अगर आप देखें सबस्क्रिप्ट में आपको सारे 1 के पैरामीटर्स गिवन है और 1 के ही आपने फाइंड करने हैं। इट मीन्स के इस केस में आपने सिर्फ इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल को सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ पैरामीटर्स इस ट्रायंगल के आपको गिवन है, कुछ मिसिंग है, तो इस पूरे न्यूमेरिकल में आपने बेसिकली इस ट्रायंगल को न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, आपने इसके पैरामीटर्स फाइंड करने हैं जो मिसिंग है, बिकॉज दिस इज अ बेसिक ट्रायंगल। अब इसमें आपको VF1 गिवन है, बीटा1 गिवन है और डायमीटर गिवन है रनर का D1। ठीक है, आपने VR1 फाइंड करना है, थीटा1 फाइंड करना है, VW1 फाइंड करना है और U1 फाइंड करना है, ये U1 है, ये फाइंड करना है। ठीक है, फॉर दैट यू विल सिंपली सॉल्व दीज ट्रायंगल्स। आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज अ सॉल्यूशन गिवन, इट इज वेरी इजी, सिर्फ आपने एंगल्स और ट्रायंगल सॉल्व किए हैं, दैट्स इट। ठीक है, so it is quite easy. Okay, now this problem is particularly regarding the design, so it is not difficult. ये बिल्कुल उसी स्टेप पे है जैसा आप लोगों ने पहले काम किया है। प्लीज मेक श्योर whenever I am saying the design, तो आपने ये जो एंगल्स फाइंड किए हैं थीटा1, बीटा1, थीटा2, बीटा2, these are also the design parameters कि किस एंगल पे आपका जेट गाइड होगा, किस पे वो एंटर होगा, किस एंगल पे वो लीव करेगा। ठीक है, तो ये सारे डिजाइन पैरामीटर्स में इंक्लूड हैं। So in this case, you have to design a Francis reaction turbine. All of these values are given to you. ठीक है, अब इसमें ये जो चीज आपने नोट करनी है, that is the discharge at the outlet is radial. अगर आपको फ्रांसिस की कंडीशन याद है, उस केस में आपका जो रनर है that is radial at the inlet, which is making theta1 0, और उस केस में discharge is radial at the outlet, which is making beta2 as 90. Sorry, theta1 90 हो रहा है और beta2 भी 90 हो रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ सेकंड कंडीशन मेंशन है। दिस फ्रांसिस टर्बाइन इज एन एग्जांपल ऑफ द मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो मॉडर्न मशीन्स हैं दे आर नॉट ट्रूली इनवर्ट रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। अब ये फ्रांसिस ही है, लेकिन इसमें थीटा 190 नहीं है, बट दिस कंडीशन implies that beta2 is 90। ठीक है, तो अगर आप उसी बेसिक वेलोसिटी ट्रायंगल में सिर्फ बीटा2 को 90 पुट करें, so you can see that the outlet velocity triangle will reduce to this, लेकिन इनलेट वही रहेगी जो आपकी बेसिक है। ठीक है, अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। यू आर हैविंग अ रनर और रनर में नंबर ऑफ ब्लेड्स हैं। आप जो भी ब्लेड कंसिडर कर रहे हैं आइदर द अपर और लोअर, उसके अकॉर्डिंगली आपकी इनलेट और आउटलेट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी ना। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में से यू हैव अज्यूम्ड दिस लोअर ब्लेड, और उस ब्लेड के लिए ये आपका इनलेट टिप है और ये आपका आउटलेट टिप है। ठीक है, सो बिल्कुल वही है। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं, यू कैन ड्रॉ द ट्रायंगल ऑन अ सिमिलर पैटर्न जो आप लोगों ने पहले पढ़ी है। ठीक है, that your upper tip is inlet tip and lower tip is outlet tip. That will not affect your results. ये बिल्कुल सेम आएंगे। So remaining everything is the same. आप लोगों ने एंगल्स फाइंड करने हैं और उससे आप डायमीटर और डिस्चार्ज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, so it is very easy. You can just go through with this and it will give you the results. Okay, next is regarding the Kaplan turbine, and in this case you are given with this data. आपकी ये प्रॉब्लम भी बेसिकली डिजाइन की है, आपने आरपीएम फाइंड करनी है और आपने डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, डाटा के अंदर यू विल मोस्टली फाइंड आउट दीज रेशियोज, U/√2GH and VF/2GH।
This ratio u over under root 2gh, this ratio is termed as speed ratio. ठीक है, स्पीड रेशियो इसमें गिवन है आपको as 2. अब यही डाटा है जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको आपके सीईपी में गिवन नहीं है, क्योंकि ये डाटा इम्पल्स में रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन ये रिएक्शन टरबाइन में रिक्वायर्ड है. तो जो भी आपकी टाइप ऑफ टरबाइन आएगी, आपने उसके अकॉर्डिंगली जो बेसिक डिजाइन इनपुट पैरामीटर्स हैं वो आपने अज्यूम करने हैं. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज दैट डाटा इज नॉट कंप्लीट. वो एक जनरल डाटा का फॉर्मेट आपको गिवन है. अब जो भी आपकी टाइप आएगी, आपने उस टाइप के रिस्पेक्टिव जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो आपने अज्यूम करनी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास डिजाइन आ रहा है कैप्लन टरबाइन का, तो कैप्लन टरबाइन का डिजाइन यही है मोरलेस जो अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं. ठीक है, कुछ पैरामीटर्स अगर नहीं है तो आप के पास जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको सर्च करें. CP है, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू डू सम इनपुट, आपने कुछ काम खुद से करना है. ठीक है, तो इस केस में स्पीड रेशो गिवन है 2 और फ्लो रेशो VF ओवर अंडर रूट 2GH. दिस रेशो इज टर्म्ड एज फ्लो रेशो. स्पीड रेशो से U की वैल्यू आ जाती है और फ्लो रेशो से VF की. आपको गिवन नहीं है. अगर आपने कैप्टन डिजाइन करनी है तो फिर आप ये रेशियोस अज्यूम करेंगे. यू विल रेफर प्रॉपर्ली दैट व्हाट इज द रेफरेंस लिटरेचर दैट विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू हैव selected these values. Also, sometimes हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो इसमें पॉसिबल है कि हर प्रॉब्लम में हर डिज़ाइन पैरामीटर कवर नहीं किया हुआ. ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि जो जो पैरामीटर डिफरेंट बुक्स रेफर करें. हर प्रॉब्लम में अगर कोई एडिशनल पैरामीटर आपको मिल रहा है तो वो ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें अपने डिज़ाइन के अंदर. ठीक है, उसको कवर करें. इसमें हम लोग n और d की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है फाइंड करना. So speed ratio will give you 2, flow ratio will give you the value of EF, and eta naught equation will give you discharge. ठीक है, so discharge की equation से आप diameter find कर लेंगे उस runner के hub और boss का, and also it will give you the value of n. So it means that for the defined power, this will be the discharge, and this will be the diameter of the runner hub, and this will be the RPM. ठीक है, अब इसके अंदर भी आपने डिजाइन करना है कैप्लन टरबाइन को. ठीक है, अब इस केस में ये देखिए फर्दर एक और पैरामीटर है दैट इट इज NS. ऑल्सो इन दिस केस इट इज मेंशन दैट डायमीटर ऑफ द बॉस और हब इज 1/3 ऑफ द D नॉट वैल्यू. ठीक है, डायमीटर ऑफ द बॉस इज 1/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ द रनर. ठीक है, तो टोटल रनर का जो 1/3 है दैट इज योर डायमीटर ऑफ द बॉस और हब. रनर के अंदर ब्लेड्स ही है ना, तो वो टोटल D है. अच्छा हाँ, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा. यहाँ पे D नॉट मेंशन्ड है. न्यूमेरिकल जो मैंने इक्वेशन आपको लिखवाई थी डिस्चार्ज की, ओवर देयर आई हैव मेंशन्ड इट एज D. क्या, तो ये D या D नॉट हो सकता है. डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस. ठीक है, डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट टर्म्स यूज की होती हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. दिस इज रेफर्ड एज D इन योर इक्वेशन ऑफ Q. ये देखिए, ठीक है, ये बिल्कुल वही इक्वेशन है. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे मैंने D मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने D नॉट किया हुआ है. सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. कंसिडर इट एज D. The remaining solution is easy. Okay, so this is the reason. Okay, for this I have given you an assignment as well. So I have said many times, please start working on the assignments as soon as possible, because when you will come to the department you will have a lot of submissions pending. कोशिश करें कि उन पे काम जो है वो आप जल्द से जल्द शुरू करें, ताकि कोई क्वेरीज हैं उनको हम टाइमली डिस्कस कर सकें. और सेकेंडली इट विल रिड्यूस द बर्डन ऑन यू एज वेल. क्या आप लोगों ने कुछ काम पहले किया होगा तो वो आपका बर्डन रिड्यूस करेगा. ऑल्सो साइकोमोटर वीक इज सून आफ्टर योर मिड टर्म वीक. तो मिड टर्म के बाद आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप लोग उसको काम कंप्लीट कर सकें. तो कोशिश करें कि ये आप काम पहले ही करके रखें. ऑल्सो पेपर के रेफरेंस से भी आपने ये चीज़ें पहले की होंगी तो आप पेपर में हेल्प करेंगी. ठीक है, तो कोशिश करें कि इनको कंप्लीट करें. सो दिस वाज रिगार्डिंग द रिएक्शन टरबाइन. अभी मैंने आपके साथ रेसिप्रोकेटिंग पंप भी डिस्कस करना है. सो लेट मी शेयर द स्लाइड्स विद यू. उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं. मैम सिलेबस इतना ज्यादा हो जाता है, एक पंप एक चैप्टर रहने दें. जी बेटा, क्या कह रहे हैं? मैंने मैम सिलेबस इतना ज्यादा हो जाएगा मैम, एक पंप को मुझे ना रहने दें. असल में आवाज़ काफ़ी कम आ रही है. फ़ैन ऑन, इसकी आवाज़ मुझे आप लोगों की काफ़ी कम आ रही है. आप कहेंगे मुझे जो भी इश्यूज़ हैं आपके, आप मुझे ना टेक्स्ट करते जाएं तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करती जाऊंगी.
क्या मुझे चैट में बता दें, मैं रिस्पॉन्ड कर देती हूँ। मुझे आवाज़ बच्चे बहुत आहिस्ता आ रही है, चैट में मुझे बताएं, मैं आपको बताती हूँ। मैम ये कह रहे हैं कि सिलेबस काफी ज्यादा हो जाना है, तो एक पंप रहने दें काइंडली। मैम टाइम भी काफी कम मिला है मिड्स के बाद, तो अब हर टीचर ही इस तरह सिलेबस खत्म करवा रहे हैं, मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही है। आप काइंडली कोई इशू है तो आप मुझे इसमें बता दें ना, चैट में टेक्स्ट कर दें प्लीज। मुझे बहुत आहिस्ता आवाज़ आ रही है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। आप कुछ कह रहे थे बच्चे, कोई अगर क्वेश्चन है या कोई पॉइंट है तो मुझे आप टेक्स्ट कर दें ताकि मुझको रिस्पॉन्ड कर दूँ। अदरवाइज वी कैन स्टार्ट विद दिस चैप्टर। Okay, so I will start with this. So although I know आज जो थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो रहा है, बट आई हैव टू कवर दी। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो साइंटिफिकल पंप है दैट इज अ बिट लेंथी चैप्टर एंड आई डोंट वांट टू ब्रेक दैट इन बिटवीन। आप एक ही गो में कवर करें तो बेहतर है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। एंड ऑन शेड्यूल ये पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, दैट इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम माय कंटेंट। ये मैं साइंटिफिकल पंप के बाद वैसे कवर करवाती हूँ। ठीक है, लेकिन आज हम इसको पहले कवर कर रहे हैं सो दैट इट कैन बी कवर्ड ऑन टाइम। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपके साथ पंप डिस्कस कर लेती हूँ। व्हाट इज अ पंप बेसिकली? Pump is a machine which is converting the mechanical energy into the hydraulic energy. It is usually required whenever you have to deliver the water to high elevation from the ground surface, या आपने अंडरग्राउंड किसी रेजरवायर से वाटर को ग्राउंड लेवल तक डिलीवर करना है। ठीक है, उसके लिए आपको वाटर को पंप करना रिक्वायर्ड होता है। पंप आप बेसिकली आप यूज़ करते हैं वाटर को एनेबल करने के लिए सो दैट इट कैन कवर सम एलिवेशन डिफरेंस। जहाँ जहाँ पे भी वाटर को आपने सर्टन एलिवेशन कवर करवानी है उसके लिए आपको उसमें हाइड्रोलिक एनर्जी इंड्यूस करनी पड़ती है। ठीक है, दैट hydraulic energy is mostly in the form of the pressure energy, and due to that pressure it is able to cover the elevation head. So that is the basic function of the pump. Now you have different types of the pumps. When I will start the centrifugal pump with you next week, उसके अंदर वो लिस्ट मैंने मेंशन की हुई है that you have around 9 types of the pumps. All the pumps are doing the same conversion, that they are converting the mechanical energy into the hydraulic energy. लेकिन जो की फैक्टर है उस चेंज का दैट कैन बी डिफरेंट। जो की प्रिंसिपल है उन सारे पंप्स का वो डिफरेंट है, एंड द नेम बेसिकली ऑफ दैट पंप इंडिकेट्स द बेसिक की प्रिंसिपल। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उस पंप के अंदर जो कन्वर्जन है मैकेनिकल की हाइड्रोलिक एनर्जी में, दैट इज बेसिकली डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दैट इज व्हाई दिस दैट पंप इज टर्म्ड एज सेंट्रीफ्यूगल पंप। हम लोगों ने जो आज डिस्कस करना है रेसिप्रोकेटिंग पंप। This pump will do the conversion of the mechanical to hydraulic energy by the reciprocating action. That is why this pump is termed as the reciprocating pump. Now, what is the reciprocating action? Reciprocating action is the continuous to and fro or up and down movement of any object. Okay, continuous to and fro or up and down movement is termed as the reciprocating action. अभी ये कैसे वर्क करती है ये मैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करती हूँ। फर्दर प्लीज नोट डाउन दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एक्शन पंप, as it will discharge a definite quantity of the liquid during the displacement of its piston or plunger in the cylinder. Also, it is always used for providing the very high pressures. The main components of the reciprocating pump are cylinder, plunger or piston,
connecting rod or crankshaft mechanism, suction pipe, delivery pipe, suction valve, delivery valve. ये schematic diagram है. It shows you the arrangement of all the components. Okay, now you have two basic types of the reciprocating pump. One is the single acting reciprocating pump and other is the double acting reciprocating pump. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके लिए सबसे पहले हम इस मशीन की वर्किंग डिस्कस करते हैं, दैट हाउ अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप विल वर्क. सो you can see the figure. Now in this case you have this suction pipe, suction valve. This is the delivery pipe, this is the delivery valve, this is the plunger or piston and it is moving in this cylinder. This plunger is connected with this crankshaft through this connecting rod. ठीक है, अब इसको आपने क्रैंक शाफ्ट और इस रॉड के थ्रू कनेक्ट क्यों किया हुआ है? बिकॉज इन दिस मशीन द रेसिप्रोकेटिंग एक्शन विल बेसिकली डू द कन्वर्जन ऑफ द मैकेनिकल टू हाइड्रोलिक एनर्जी. ठीक है, तो आपने प्लंजर को रेसिप्रोकेट करवाना है, उसको मूव करना है टू एंड फ्रो. तो फॉर इट्स मूवमेंट यू आर कनेक्टिंग इट विद दिस क्रैंक शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिंग रॉड. आपने इसको मैनुअली तो नहीं करना ना, यू नीड सम कंपोनेंट अरेंजमेंट which will move this plunger. So that is basically doing that. Now how it will work? Initially when the shaft is at point A, that is the zero angle theta. ये जो angle है ना theta, ये angle है इस rod का with the horizontal axis. Initially ये theta 0 है, point A पे है. In that case the piston or plunger is at the extreme left position. यहाँ पे होगा. ठीक है. Now when it will become at point B, 90 degree पे होगा, it will become in the center. C पे है तो ये 180 पे है, it will be at this extreme right position. ठीक है, it means के 0 से 180 तक जो प्लंजर है वो लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है. Now when the plunger is moving from left to right, what will be the condition on this side of the plunger? प्लंजर की लेफ्ट साइड पे क्या होगा, क्या conditions होंगी? You will have the vacuum which is generated over here. It is very much similar to how a syringe is filled. Syringe कैसे fill करते हैं? Syringe का जो plunger है, when you move that or pull that backward, तो उसकी वजह से उस syringe के ट्यूब में vacuum create होता है and due to that vacuum the liquid is sucked in the syringe and it fills that. Same is the case over here. When you are moving the plunger or piston in the backward direction from left to right, the vacuum is created on this side of the plunger. Whenever I say vacuum, I always refer the vacuum as the inward pressure. ठीक है, negative pressure usually बच्चों को clear नहीं होता. What is the negative pressure? Negative pressure is always considered as the inward pressure. इसकी direction inward है, ये vacuum है, ये suction create कर रहा है सारी sides पे, ये inward act कर रहा है. अब अगर ये डायरेक्शन इनवर्ड है प्रेशर की, तो आप मुझे बताएं कि कौन सा वाल्व इस प्रेशर में ओपन होगा और कौन सा क्लोज होगा. This is the delivery pipe, sorry, delivery valve. It will remain closed under this direction of the pressure. And this is a suction valve. It will get open under this direction of the pressure. So when the suction valve is opened, also you have the suction, the negative pressure. Suction है. वो suction की वजह से इस sump में से water जो है वो suck होके plunger की इस side पे fill होना शुरू हो जाएगा. ठीक है? So when the plunger is moved from left to right, the suction will be generated on this side of the plunger. That will cause the suction valve to open and due to that the water will be sucked from the sump level and it will start filling this side of the cylinder. So when your plunger is at the extreme right, you will have the maximum volume of the cylinder filled with the water. अब ये आपने पहला फेज कर लिया है अपनी कन्वर्जन का. ठीक है, यानी कि आपने वाटर को पुल करके उस मशीन में फिल कर लिया. ठीक है, अब आपका सेकंड फेज क्या है कि आपने वाटर जो फिल किया है मशीन के सिलेंडर में, अब आपने उस पर पॉजिटिव एनर्जी इंड्यूस करनी है. उसके लिए आप क्या करेंगे, यू विल मूव द शाफ्ट फ्रॉम पॉइंट सी टू ए. जब आप पॉइंट सी से पॉइंट डी पे मूव कर रहे हैं इसको, तो वो एक्सट्रीम राइट से आ जाएगा सेंटर में, और डी से ए पे जब जा रहे हैं तो वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ जाएगा. अब ये मूवमेंट इतनी इजी नहीं है, ये सिंपल नहीं है, बिकॉज ऑन दिस लेफ्ट साइड ऑफ द प्लंजर यू हैव वाटर फिल्ड. ठीक है, तो जब आपका प्लंजर मूव कर रहा है राइट से लेफ्ट, तो वो उस वाटर पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जो कि ऑलरेडी इस साइड पे फिल्ड है. ठीक है, अब उस वाटर पे पॉजिटिव प्रेशर एक्ट कर रहा है.
उस वाटर के अंदर पॉजिटिव प्रेशर जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब पॉजिटिव प्रेशर की डायरेक्शन क्या है, दैट इज आउटवर्ड। वो मैं अगर आपको शो करूं, इट विल बी लाइक दिस, आउटवर्ड है, ये डायरेक्शन है आउटवर्ड प्रेशर की। अब इस प्रेशर के अंडर आप मुझे बताएं कि कौन सा वाल्व ओपन होगा और कौन सा क्लोज होगा। दिस सक्शन वाल्व विल रिमेन क्लोज एंड this delivery valve will now get open. Okay, so this is the working of this. So initially आपने जब shaft A से C तक move कर रहे हैं, you will have the suction, the water is filled on the suction side. और second phase में when the shaft is moving from point C to point A, the water will experience a positive pressure, and due to that positive pressure the delivery valve will now get open and it will leave the water from this delivery valve and through the delivery pipe to the required location. ठीक है, तो ये है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। अच्छा, अब इसमें हमने ये डिस्कस नहीं किया कि क्रैंक शाफ्ट और एक सिंपल शाफ्ट में क्या डिफरेंस है। A simple shaft is transferring the rotations from one end to other end. Okay, एक क्रैंक शाफ्ट क्या कर रही है, क्रैंक शाफ्ट इज ट्रांसफरिंग द रोटेशंस इन द फॉर्म ऑफ द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या शाफ्ट इटसेल्फ, क्रैंक शाफ्ट इटसेल्फ रोटेट कर रही है, लेकिन ये रोटेशंस लीनियर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में आप ट्रांसफर कर रहे हैं टू द प्लंजर। That is why it is termed as a crankshaft. It is having a certain larger diameter as compared to a simple shaft. तो simple shaft का diameter कम होता है, crankshaft का diameter ज़्यादा होता है। So if I summarize this, जो points यहाँ लिखे हैं इनको देखें। In the single acting reciprocating pump, water is acting only on one side of the plunger. ठीक है, there is one suction valve and one delivery valve. Now in one revolution of the crankshaft there is one suction and one delivery stroke. I think it is very clear. 0 से 180 तक सिर्फ suction है और 180 से 360 तक सिर्फ delivery है। Okay, so that is why the discharge of the pump is pulsating. You will not have the water continuous, ठीक है, उसमें breaks आएंगे। तो जब ब्रेक है इट मीन के उसमें वाटर पंप के अंदर फिल हो रहा है, और जब वाटर डिलीवर हो रहा है इट मीन्स के वही वाटर जो इनिशियली फेल्ड था अब वही डिलीवर हो रहा है। ठीक है, सो इट इज पल्सेटिंग। तो दिस का शोज कि इस ड्यूरेशन में आप वाटर को डिलीवर आउट करें। Okay, the working of this machine I have written that also in the पैराग्राफ ओवर हियर। तो आप इस स्लाइड के थ्रू उसकी वर्किंग को दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं। सो दिस इज सिमिलर टू व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड। ओके, नाउ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, बट व्हाट इज द डिफरेंस दैट इन दिस केस यू आर हैविंग टू सक्शन पाइप्स एंड टू डिलीवरी पाइप्स along with two delivery valves and two suction valves. इस केस में जब पिस्टन जो है वो 0 से 180 मूव कर रहा है, you will have suction on the left side of the plunger, so S1 valve is opened. But at the same time, you will have the delivery of the water on the right side of the plunger, that is why D2 is opened. And when the plunger is moving from 180 to 360, in that case over here you will have the delivery and on this side you will have the suction. It means कि इस केस में प्लंजर की जो दोनों साइड्स हैं दे आर द वर्किंग सेक्शंस and the discharge in this case is continuous. Okay, because you have two delivery pipes, so water is coming from one pipe at one time. Okay, so this is the double acting reciprocating pump. It is obviously having the discharging capacity double as compared to the single acting reciprocating pump. तो इस केस में डिस्चार्ज डबल है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप से। Now if I develop the equation for the flow rate, that volume of the water delivered in one revolution is simply area into the length of the stroke. जो भी वॉल्यूम फिल हो रहा है बेसिकली सिलेंडर में, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। वॉल्यूम आप कैसे फाइंड करेंगे इस सिलेंडर का, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, वो लेंथ जिसमें ये पिस्टन मूव कर रहा है, into the cross sectional area A. Area is pi d square by 4, where d is the diameter of the cylinder and L is the stroke length. Okay, so this is for one revolution, एक revolution के लिए। So number of the revolutions per second, that will be n by 60. So discharge is
A into L, ठीक है, ये वॉल्यूम आ रहा है एक रेवोल्यूशन के लिए, इट इज n/60. Now please make sure A into L is the volume in meter cube and this n is the revolution per minute. आपने जब इसको 60 से डिवाइड किया है तो ये रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई है. So that is giving you the discharge in meter cube per second. ठीक है, so this is the discharge for the single acting reciprocating pump. For the double acting reciprocating pump, the discharge will simply become double, that is 2LAN/60. Now the power that is required to drive the pump power है, it is simply work done per second. आप इक्वेशन लिख रहे हैं किलोवाट्स में, तो आप इस पावर को डिवाइड करेंगे 1000 से, सो दैट यू गेट द पावर इन किलोवाट्स. अब आपने पावर फाइंड कैसे करनी है? प्लीज मेक श्योर इट इज अ पंप, इट इज इंड्यूसिंग दी हाइड्रोलिक पावर. आप मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. इस केस में जो आपकी पी नॉट की वैल्यू होगी, पावर होगी, दैट इज द हाइड्रोलिक पावर. हाइड्रोलिक पावर का फॉर्मूला क्या है? दैट इज ऑलवेज गैमा क्यू एच. ठीक है, सो गैमा ओवर हियर इज गोइंग टू जी, क्यू इज LAN/60 फॉर सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, एंड हेड इज HS प्लस HD. जो भी ये टोटल हेड है यहाँ पे, दैट इज HS प्लस HD. दिस इज द इक्वेशन फॉर द पावर फॉर द सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप इन किलोवाट्स. फॉर द डबल एक्टिंग द इक्वेशन इज सेम, ओनली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डिस्चार्ज जो है दैट विल बिकम डबल, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2. ओके, so remaining equation is exactly same. Now we see a numerical problem. अच्छा सॉरी, इससे पहले स्लिप हम डिस्कस करेंगे. Slip of the pump is the difference between theoretical and actual discharge, and we know that mostly actual discharge is less as compared to theoretical because of the losses which will take place during the flow. But in this case, Q actual can be more than Q theoretical in some cases, and it will make the slip of the pump as negative. It happens when the length of the delivery pipe is very small as compared to the suction pipe and pump is running at a high speed. Delivery valve opens before the completion of the suction stroke and some water is pushed in the delivery pipe before the piston commences its delivery stroke. It means कि वो water उस सिलेंडर में फिल नहीं हो रहा, वो डायरेक्टली सक्शन पाइप से डिलीवरी पाइप की तरफ डिलीवर आउट हो गया. ठीक है, तो वो एक्चुअली में तो आपने करेक्ट कर लिया डिलीवरी पाइप के थ्रू, लेकिन वो अगर सिलेंडर में फिल नहीं हुआ, इट मीन्स के आपने उसको क्यू थ्रेटिकल में कंसिडर नहीं किया. तो दैट इज व्हाई इन दैट केस द स्लिप विल बी नेगेटिव. Next is CD, that is the coefficient of the discharge. It is the ratio of Q actual and Q theoretical. Then volumetric efficiency, it is the ratio of Q actual and Q theoretical in percentage. Now this is a numerical regarding the single acting reciprocating pump. In this you have to find out Q theoretical, CD, slip and percentage slip of the pump. So these are quite easy. Just write down the equations and you will get the answers. This is a very simple problem. Okay, next is another type of the reciprocating pump, which is termed as suction pump or hand pump. It is a type of the reciprocating pump in which suction is significant as compared to the delivery lift. ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा हैंड पंप. आप हाथ से पंप करते हैं वाटर फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस. ठीक है, ये तो ये छोटी कैपेसिटी पे वाटर को डिलीवर करने के लिए आप यूजुअली यूज करते हैं. सो इन दिस केस दिस इज द प्लंजर. ठीक है, ये प्लंजर है जो कि मूव कर रहा है. दिस इज द डिलीवरी वाल्व, दिस इज द सक्शन वाल्व बी. व्हेन यू विल पुल इट अपवर्ड, द सक्शन वाल्व विल गेट ओपन, डिलीवरी वाल्व विल रिमेन क्लोज, और सक्शन वाल्व के थ्रू वाटर जो है वो इस सिलेंडर में फिल हो गया. When you push it downward, the delivery valve will now get open, the suction valve will remain closed, and the water which was initially filled in the cylinder, that is now delivered out. So this is how it works. It is working on the same principle of a simple single acting reciprocating pump. Okay, now I have told you that you have around total 8 to 9 types of the pumps, including the centrifugal pump, reciprocating pump. उसके अलावा आपके पास और भी 6 to 7 टाइप्स हैं. ठीक है, उसमें से हम लोग जो सिर्फ पहली 4 हैं वो हम लोग इस कंटेंट में डिस्कस कर रहे हैं. सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप आर डिस्कस्ड इन डिटेल. इनके अलावा टरबाइन पंप है और एक सबमर्सिबल पंप है. दीज टू विल बी डिस्कस्ड वेरी ब्रीफली, कि आपको सिर्फ आइडिया इनका होगा कि हाउ दे वर्क्स. ठीक है, सो आउट ऑफ टोटल 8 of the pumps we are discussing only first 4.
उसमें से भी जो पहली दो हैं वो हम लोगों ने इन डिटेल डिस्कस की हैं, एंड रेस्ट ऑफ द टू विच आर द टरबाइन पंप एंड द सबमर्सिबल पंप वी विल जस्ट हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दैट. So third one is the turbine pump. बच्चे क्या हो गया, वैसे तो आपका 3 घंटे का लेक्चर है, तो अभी तो 1.5 घंटा भी नहीं हुआ. ठीक है, तो ये बस थोड़ा सा रह गया, और आई थिंक सर 2 या 3 स्लाइड्स हैं और. ठीक है, सो अभी फिनिश हो जाएगा. So turbine pump, it is a multi-stage axial flow vertical shaft centrifugal pump. Number of the impellers are provided to the same shaft to increase the head. आप लोगों को अगर थोड़ा सा आइडिया है, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मुझे ये बताएं कि जो घरों में पंप्स लगे होते हैं वो कौन से पंप्स हैं, तो कैन यू आंसर मी? ठीक है, यूजुअली हम लोग जब घर में कहते हैं कि मोटर ऑन करते हैं, तो बेसिकली मोटर इज नॉट पंपिंग द वाटर, मोटर के साथ पंप कनेक्टेड है जो कि वाटर को लिफ्ट कर रहा है टू द टैंक्स जिसको फिल करना है. ठीक है, तो आजकल जो मॉडर्न पंप्स कनेक्टेड हैं घर में, दो आर दी टाइप्स ऑफ दी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स. जो पुराने पंप्स लगे होते थे घरों में जहाँ पे यू कैन फिजिकली हियर द साउंड कि कोई कंपोनेंट आगे पीछे मूव कर रहा है. ठीक है, उसमें वो एक पिस्टन मूव करता हुआ नजर आता था, दैट वाज द रेसिप्रोकेटिंग पंप. तो घरों में जो पहले पंप लगे होते थे दोज वर द टिपिकल रेसिप्रोकेटिंग पंप्स. आजकल सेंट्रीफ्यूगल पंप्स यूज होते हैं घरों में भी. ठीक है, आप सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की कैपेसिटीज इंक्रीज कर सकते हैं. उसमें से एक जो मॉडिफिकेशन है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, दैट इज दिस टरबाइन पंप. तो ये यूजली आप फील्ड में यूज करते हैं जहाँ पे एलिवेशन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है जो आपके वाटर को रिक्वायर्ड है कवर करना. ठीक है, तो इन दिस केस जो है ये टर्म्स आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी जब मैं आपके साथ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिस्कस करूंगी. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. इट कैन प्रोड्यूस द हेड रेंजिंग फ्रॉम 25 फीट टू 1000 फीट और इवन मोर. इसका एडवांटेज क्या है, दैट इन दिस केस नो प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड एंड देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ द सक्शन लिफ्ट. The last type which we will discuss in the pumps, that is the submersible pump. It is the pump in which both the motor and the pumps are submerged in the water. Electric energy to the motor is supplied by a long core cable. So this is a submersible pump. It has the advantage that no priming is required. There is no problem of suction lift. It can produce the higher heads. Very long vertical shafts are not required. Frictional losses are less. It is cheaper and it requires the lesser maintenance cost. तो घरों में अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं जहाँ पे आपको बोर्स ड्रिल करवाने पड़ते हैं. ठीक है, जैसे ये प्रैक्टिस है इस्लामाबाद वगैरह में कि आपको बोर्स ड्रिल करवाने होते हैं घरों में टू हैव द ग्राउंड वाटर. ठीक है, तो जहाँ पे डीप बोर्स आप होल करवाते हैं वहाँ पे यूजुअली सबमर्सिबल पंप इंस्टॉल किए होते हैं. ठीक है, सो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट यू कैन सेलेक्ट द टाइप ऑफ द पंप्स. हम लोगों ने इस कंटेंट में सिर्फ पहली 4 टाइप पंप की डिस्कस की हैं. उसमें से भी आपने पहली 2 जो हैं वो इन डिटेल डिस्कस की हैं. यू हैव अदर टाइप्स एज वेल. ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट यू कैन सेलेक्ट द बेस्ट टाइप ऑफ द मशीन फॉर योर condition. So that was all regarding this chapter. So this chapter is having the assignment number 5 as well. So I have shared the PDFs, audio and the assignments of all 3 topics with you already. So please, I have said many times, कोशिश करें कि इनको आप पहले से एड्रेस करना शुरू करें. अब जैसे ग्रुप्स का इशू है, मैंने 3 दिन पहले का आपसे ये शेयर किया हुआ है, फिर भी आपने जब मैंने फाइनल शेयर कर दिया है उसके बाद आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं अगर कोई इशू है. It is not possible to accommodate each and every query every time. Okay, तो अगर आपको कोई टाइम लिमिट दी हुई है तो उसका एडवांटेज आपके लिए ही है दैट within that time we can just हाँ जी. तो अगर आपको टाइम लिमिट दी हुई है क्वेरीज के लिए, कोशिश करें कि उस टाइम लिमिट में जो भी आपके मसले हैं उनको आप काइंडली टाइमली इन्फॉर्म कर दें. ठीक है, अब किसी भी बच्चे का ग्रुप के रेफरेंस से कोई इशू है, आई एम सॉरी आई कैन नॉट एंटरटेन दैट नाउ. ठीक है, आप कोशिश करेंगे जो भी ग्रुप्स आपके हैं आप उनमें काम करना शुरू करें. अगर कोई बच्चा किसी ग्रुप में नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. 3 लोग अगर हैं तो वो काम कर सकते हैं इजीली. फिर भी अगर कोई ज़्यादा इशू होगा, कोई और रिपीटर अगर आता है जो कि ऐड नहीं किया गया, तो मैं उसको ऐड कर दूँगी आपके साथ फॉर दी हेल्प. अदरवाइज इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट कि आप लोग काम नहीं कर सकते. ठीक है, तो कोशिश करें कि ड्यू टाइम से पहले अपनी क्वेरीज वगैरह को डिस्कस कर लिया करें, सो दैट आई एम एबल टू
just help you regarding that. Okay, so that is all regarding today's lecture. अब अगर आपके कोई questions हैं, just please inbox them to me so that I can answer them. सिलेबस बच्चे, सिलेबस तो यही डिफाइंड है ना ऑलरेडी, इसको मैं बिल्कुल कम नहीं कर सकती। वो आपको ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि अब आगे पीछे टाइम थोड़ा कम हो गया है। तो जी हसन, आप बेटा टेक्स्ट करें, जो भी क्वेश्चन आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं उसको आंसर कर देती हूँ। ठीक है, वो ज़्यादा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम स्क्वीज हो गया इन पे, सो मैं कवर जल्दी करवा रही हूँ। अदरवाइज ये डिफाइंड कंटेंट है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है काइंडली मुझे इनबॉक्स करें, मैं उसको आंसर कर देती हूँ। जी हसन, आप क्वेश्चन अपना मुझे इनबॉक्स करें, मैं तब तक अटेंडेंस मार्क करना शुरू करती हूँ बच्चों की। बच्चे तुम लोग पहले थोड़ी है जिन्होंने करना है, आपसे पहले भी बाकी बच्चों ने यही सारा कुछ पढ़ा है और ऐसे ही पढ़ा है। ठीक है, अब ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने पहले से कोई काम नहीं किया। ठीक है, तो वो टाइम इसलिए आपको कम लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने पहले काम नहीं किया। अब ये और ज्यादा लगेगा अगर आप लोग इस काम को और डिले कर रहे हैं। अभी भी आपके पास 1 से 1.5 महीना है, काम आप शुरू करें इन पे। अभी मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों में से किसी ने भी असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट किया। क्या अगर वो नहीं किया तो ऑलरेडी अब आपका बर्डन है। एंड डिफिकल्ट देन इन द स्लाइड्स, बच्चे डिफरेंट तो वो हैं क्योंकि वो बिल्कुल सारे क्लास प्रॉब्लम्स वाले तो नहीं है ना। लेकिन आपको मैंने पहले भी कहा है, जो मैं आई एम अवेलेबल टू यू टू आंसर द क्वेरीज इवन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द क्लास। कोई क्वेरी है आपका न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे कोई इश्यूज हैं आप मेरे से उन पे कंसल्ट करें। आई एम अवेलेबल, आई ट्राई माई बेस्ट, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करूँ। ठीक है, तो उसमें वो असाइनमेंट्स हैं तो वो उसमें एक्सपेक्ट सम चेंजेस, बिल्कुल वही प्रॉब्लम्स नहीं है जो क्लास वाली हैं। ठीक है, उसमें कोई ना कोई चीज़ होती है जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डाली होती है। थोड़ा सा काम आपकी तरफ से भी एक्सपेक्टेड होता है कि आप लोग भी खुद एफर्ट करें। कोई समझ नहीं आ रही है चीज़, आप उसको शुरू करें। आई एम अवेलेबल, आई विल आंसर द क्वेरी। आप मुझे टेक्स्ट कर दें एंड एज सुन एज आई एम फ्री आई विल आंसर द क्वेरीज। अच्छा, आप में से डॉफर्टी का मैं चेक कर लेती हूँ मेरे पास कौन सा एडिशन है। ठीक है, तो मैं वो शेयर कर दूंगी शॉर्ट फॉर्म में अगर वो आपके पास नहीं है तो डॉफर्टी भी मैं शेयर कर दूंगी। डगलस मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ जिसमें से मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चन दिए हुए हैं। डॉफर्टी भी पड़ी हुई है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो बच्चे ये काम करने से होगा। इस तरह अगर आप एट दी 11th आप परेशान हो रहे हैं तो ये और 15 दिन अगर आपने ऐसे गुजार दिए तो आप मजीद परेशान होंगे। ये काम बहुत ज़्यादा है, तो काम आपके लिए ज़्यादा नहीं है, ये बाकी सारे बच्चों के लिए ऐसे ही है, बाकी सेशंस में भी ऐसे ही पड़ा है। आपको ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने अगर पहले कोई एफर्ट नहीं किया है, टाइम वेस्ट किया है, तो अब वो आपको ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये कोशिश करें कि काम शुरू करें, कम से कम असाइनमेंट को तो साथ शुरू करें ना। सीईपी टर्बाइंस आपने पढ़ ली हैं, सीईपी आपकी सारी टर्बाइंस से रेलिवेंट है, सीईपी पे काम शुरू करें अपना। ठीक है, तो कम से कम अपना पार्ट तो प्ले करें ना आप। ठीक है, चलिए ऐसा आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। ओके जी, 111 शायद नहीं है, 112 112 113 यस मैम। 114 यस मैम। 112 112 ओके 115 यस मैम 115। ओके। हाँ जी बच्चे, आप लोगों के शायद ग्रुप का इशू है। आप लोग तो इतना कोई मुश्किल नहीं है जो आप लोग काम नहीं कर सकते, आप लोग काम शुरू करें। और 111 अगर नहीं है, देखिए पूरा सेमेस्टर गुजर गया और शेयर किए हुए भी मुझे 3 दिन हो गए थे, आप लोग मुझे काइंडली पहले इन्फॉर्म कर देते। ठीक है, अब
दोबारा से मैंने रिवाइज किया सारी चीज़ें, वो बहुत मुश्किल है दोबारा से रिवाइज करना। ठीक है, तो वो फिर किसी और बच्चे का कोई और इशू निकल आएगा। तो आप लोग काम करना शुरू करें। इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट कि आप 3 लोग काम नहीं कर सकते, और आप ये थोड़ा सा तो बियर करना पड़ता है कि ग्रुप में अगर इस तरह से है डिस्ट्रीब्यूशन, टीचर खुद कर रहा है, तो थोड़ा सा इशू तो ये होता है। ठीक है, सो जस्ट प्लीज़ बियर विद दैट, और कोशिश करें कि मेन टास्क आपका ये है कि आपने काम कंप्लीट करवाना है। तो अगर आपका ये टास्क मेन ऑब्जेक्टिव आपका यही है, तो फिर आप बाकी इश्यूज हैं दे आर वेरी माइनर, तो काम आप लोग कर लेंगे। ठीक है, हेल्प भी चाहिए, आई एम अवेलेबल, मेरे से आप कोई भी इशू है आप उसको डिस्कस करें। कोशिश करती हूँ कि मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्ड करूँ। ठीक है, तो इसमें कोई इशू है मैं आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, चलिए 116, 117, 118, मैम। ओके, 119, मैम। ओके, 120, यस मैम। 121, 122, 123, 123, Yes, ma'am. Present, ma'am. okay, 124, 125, 126, 127, Yes, ma'am. 127. 127 present है? Yes, ma'am. I'm present. Okay, 128, Uh, 128, yes, ma'am. Present. okay, 128. 129, 129, 130, Present. okay, 131, Yes, ma'am. Present 131. 132, 133, Yes, ma'am. 132. 132, 133, okay, 134, 135, Yes, ma'am. 135 present. 136, Yes, ma'am, वो ना present. यार मैंने ना 136. मतलब मैंने आखिरी टाइम जाके ना नींद आ गई थी पर शो ये 137, 138, Present. 138. okay, 139, 140, 141, 142, 143, I'm 142 present. 144, I'm 142 present. 144 present, ma'am. 144. 142, Yes, ma'am. Ma'am, one. अच्छा 140. 142 and 144, okay, Oh, 145, Present. अच्छा 146, 147, 148, 149, 150, 151, Yes, ma'am. Present. 150 present. 152, 151 present मैम 151 ये क्या बोल रहा है 152, 151
अच्छा ठीक है 152 प्रेजेंट है 153 53 154 153 ma'am. 154 Yes, ma'am. 154 present here. 155 Yes, ma'am. 155. 156 Yes, ma'am. 156. 150 मार्क करके दिया 157 158 Yes, ma'am. 158. चला जिन की रहती है काइंडली चैट बॉक्स में बता दें प्लीज मैम 124 की हो गई है 124 की नहीं हुई बता दिए मैंने बोली थी 155 टीचर्स कहते हैं काइंडली मुझे बता दें 116 आपकी मार्क कर दिया अपना मैंने पहले बताया मैंने मार्क कर दिया मैम 143 चेक करें. Okay, recognize. One 43 okay. 124 mark करके हटा 134 recognize. 300 ma'am.